Afternoon. So this is Sonia Birje slash Jungle Baby, not Jungly Gilbly. Okay. And congratulations, Mr. Zaveri and Mr. Mukherjee. This is a great initiative, and I'm honored to be a part of it. Like we all know, and it's all been spoken here today on the table, the whole journey of buying a house of your own money. It's like a big dream, and when you do that, if that is hassle-free and no stress involved, I mean, that's such an amazing like a package that you can sign up with anything. So I believe this is a great initiative. All the best to you guys. May you all rock, have a great time, and all of us. Thank you so much. Thank you so much, Sonia. And Ishika Taneja is with us. Ishika. I would like to congratulate you for starting this amazing initiative. And also, I feel that you as a group, you're not just giving us a house, but actually giving us a home. Because for me, when I'm looking for a house, I'm actually looking for something that I can invest the least and actually get the most. And that's what you guys are doing, providing amazing luxury. And to add to that, I think the greatest part is that you're giving us services so that we don't have to go every day, look for it. It's a hassle-free investment. So that is why I call it a home. And thank you so much for that. All right. Thank you so much. Thanks a lot. I think all of them has been launched today, which is designed to revolutionize real estate interactions with user-friendly interface, advanced analytics, and unwavering commitment to transparency. Now the floor is open for questions. माइक रखते हैं ना, बूम रखो। इसको मारो। यस, बूम रखो। मुंबई महानगरी की बात आती है तो हमेशा यही रहता है कि आज के इस दौर में जहां प्रॉपर्टी के दाम हमेशा आसमान छूते हैं, क्या एक मिडिल क्लास एंड लो इनकम ग्रुप क्लास के जो लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में इस शहर में मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं, तो क्या उनके लिए ये संपत्ति पाना संभव है? तो क्या इस पे कुछ कहेंगे कपिल जी पहले? डेफिनेटली, जैसे आपने ठीक कहा कि मुंबई महानगरी है, एंड हमने बोलने से इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारे जो एक्सपर्टीज़ है, हमारे जो लैंड बैंक है, तो पुणे से शुरू करते करते डेफिनेटली अभी बॉम्बे इतना बड़ा होता जा रहा है कि मैंने बॉम्बे पुणे तक पहुंच गया है। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे आया था तो हम काजली बोरेली यहाँ जाते थे, अभी थाने, फिर एरोली, फिर कहाँ मतलब ऑलमोस्ट टच ही कर लिया, अभी खोपोली तक पहुँच गए। डेफिनेटली ये मुंबई वालों के लिए भी ये है, एंड बहुत कमिंग 5 to 6 months my संपत्ति is also going to very soon enter Bombay, and I promise you one thing is definitely हर एक तबके के इंसान के लिए ये ड्रीम पॉसिबल है। Sandeep sir, I have like couple of questions for you. Obviously when you played the game, और जो अक्सर हम पुराने क्रिकेटर्स से सुनते हैं that आपके ज़माने में लोग क्रिकेट खेलते थे पैशन, you know, purely for the passion, और शायद पैसे उस ज़माने में इतने नहीं की बात करो ना। मुझे ये जानना था कि उस दौर में obviously we have gathered here for my Sampati. Yes sir, I'll actually मुझे थोड़ा question to yeah I'm trying getting over there only. तो सर लेकिन मुझे ये पूछना था, आपके दौर में you know एक घर का सपना by being a cricketer वो कितना मुश्किल था? तब तो खैर कोई संपत्ति थी नहीं। I should consider myself very lucky that I was born with not a silver spoon but with a diamond spoon. So हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई, ये जो मकान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, but I wish everything you know ये सब के लिए जो संपत्ति ले आया है, जो मेरे नसीब में था वो अभी संपत्ति के थ्रू सबके लिए नसीब होगा। क्वेश्चन और है क्रिकेट का, अगर आप अनुमति दे तो मैं पूछ लूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। कपिल जी, मेरा सवाल आपसे है, इस तरफ ये आवाज आ रही है सबको? हाँ जी भी आई। कपिल जी, आपकी टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर कहूँ तो कौन होंगे? क्या हम इसको सेकंड होम कह सकते हैं? मैंने डेफिनेटली आपको कहा कि हिंदुस्तान है, एंड यहाँ काफ़ी मतलब मैं कभी किसी को लेवल पे गिनती में नहीं लेता हूँ, बट आप जैसे कि जैसे आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, एंड आज देखें तो कि बैंक बहुत से लोगों तक नहीं पहुँचता और बहुत से लोग बैंक तक नहीं पहुँचते। जैसे एक
बैंक एक नॉर्मल आदमी को इतना परेशान कर देता है, उसकी सिबिल से लेके इतनी फाइलों के धक्के खाते हैं वो. So My Sampati is a platform. Basically it will open the ways for I will say each individual जो ज़िंदगी में कहाँ ना कहाँ अपने पैरों पे खुद खड़ा है, and me and my team will work for them, and from the scratch, from the starting to for the documents and everything, and we will make this thing happen possible. So ये basically हर एक इंसान के लिए है, and our target audience is basically जो वाकई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो वाकई में तकलीफ़ें सह रहे हैं, जो वाकई में जो सिस्टम ऐसा सेट हुआ है, बहुत चैलेंज हो जाता है काफ़ी. मतलब वो जो सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन जब घर से निकलता है डॉक्यूमेंट्स लेके कहाँ ना कहाँ उसके धक्के खा के वो 3-6 महीने में गिव अप कर देता है. फिर उसकी पुश्ते आती है, फिर उसकी आती है. सो ये कहीं पॉसिबल होता नहीं है, जो आदमी रेंट से कभी बाहर निकल नहीं पाता है. सो ये उनके लिए. इस प्रोजेक्ट को देखते हुए लगता है कि आप एक बहुत ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं. डायस पे भी देखें तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह दिखते हैं हमको. तो क्या जो सेलिब्रिटीज़ होंगे उनको कुछ डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े वहाँ पर? सेलिब्रिटीज़ हैं तो डिस्काउंट की जरूरत नहीं होती. और मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब जैसे आटे देंगे वो बेस्ट है. बिकॉज हम नाले फोड़ना जानते हैं, वो आगे कैसे देना प्रसाद बांटना है वो है. कुछ चांस है सर शिव ठाकरे कंप्लीट होना तो ना सर जी, कंप्लीट हो भाई. बिल्कुल जैसे कि मिस्टर जवेरी बोले कि वी विल केटर टू एवरीवन, सो वी विल नॉट गो अहेड एंड जस्ट प्रायोरिटाइज. और हम लोग किसी जैसे कि हम लोग कोई क्लास और कोई वैसे को बिलीव नहीं करते. सो एज ऑफ नाउ जैसे कि हम लोग का विजन है, द विजन ऑफ मिस्टर कपिल जवेरी is very large, that we will cater to people who as of now are very much there on their feet, but वो लोग धक्के खा रहे घर के लिए. So people आप देखोगे कि around ticket size 45 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, 60 lakhs, these people struggle a lot. वो लोग के लोन के बारे में कुछ बताए नहीं जाते. There are a lot of complications, there are a lot of hurdles. So जैसे कि मैं बोला हूँ कि this is a one stop solutions. So when we and our thumb rule is to go ahead and grow long term client relationship. तो एक client हम लोग के साथ जब जुड़ जाएंगे, so वो client को My Sampati छोड़ के और कुछ दिखेगा नहीं. So we will all go ahead and have only My Sampati resolve all the problems and issues in his life regarding his home. That's our mission. यहाँ पे कपिल जी माइक. मेरा सवाल ये है कि हम जिस तरह देखते हैं जो विरार वसई वहाँ की टारगेट ऑडियंस के लिए कुछ अलग आपने प्लान किया है क्या, जो नॉर्मली जो पालघर है, जो टाउन साइड नहीं, टाउन के अलग? डेफिनेटली जैसे अगर आप आज कहें बात अभी आटे जी ने सही की ये 45-50 लाख, मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस में इस यहाँ अपने टिकट मिल सकती है कोई चीज़ें. तो जैसे मैंने कहा कि बॉम्बे बहुत बढ़ते जा रहे आगे, तो विद इन बॉम्बे के अंदर भी, और जहाँ वी टारगेटिंग फर्स्ट महाराष्ट्र, अभी सारी को पुणे, एंड काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही है, काफ़ी सारी लैंड्स को देखा जा रहा है, काफ़ी सारी लैंड्स ली भी हैं. एंड यस मेरे ख्याल से आफ्टर 50-20 days यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. शिव, मेरा सवाल आपसे. शिव, जिस तरह हम कहते हैं ना सपनों की दुनिया, या फिर सपनों की दुनिया बॉम्बे को कहते हैं, तो बॉम्बे में घर बनाना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, और घर जब भी बनाते तो उसका नाम अलग अलग रखते हैं. जिस तरह आपके फेवरेट स्टार शाहरुख खान ने अपना घर का नाम मन्नत रखा है, तो आपके माइंड में कभी ऐसा कोई नाम है जो आप घर का नाम रखना चाहते हो कोई भी? मुझे लगता है संपत्ति ग्रुप पुणे के बाद मुंबई के बाद जो थोड़ा उधर आ ही जाइए, तब तक नाम तो रेडी है मेरा. फिर तब तक मैं भी हिम्मत लगाऊंगा, चलो अभी उधर घर ले सकता हूँ, मैं जिजाऊ या ऐसे कुछ रखूंगा जो मेरा आई को बोलता हूँ. सर मराठीमध्ये जाणू इच्छितो तुमच्याकडून, तुम्ही या प्रोजेक्टचा भाग आहे, कसं वाटतं तुम्हाला? आणि तुम्ही देखील एका मिडल क्लास फॅमिलीमधून बिलॉंग करत होता, आताहून करत असतील, पण ते तुम्हाला ते जे तुमच्यासारखे जे बाकीचे मुंबईचे मिडल क्लास फॅमिलीवाले आहेत त्यांना हे परवडेल? मला असं वाटतं की
घर घेणं पहिलं सोपी असतं, जशी कार घेणं सोपी असते, पण त्याला मेंटेन करणं आणि त्यानंतर काही आपल्या घरात काही जरी गोष्टी आल्या, अडथळे आले, तर त्याला पैसे लावणं ते मग आपल्याला, कारण तिकडे EMI पण आली. पण या ग्रुपचं मला ते वाटतंय की जर तेवढ्या ट्रस्टनी, ती एक टॅगलाईन आहे यांची, तुम्ही टॅगलाईन बघाल तर मेन आहे की यांची जबाबदारी आहे ती. म्हणजे घर दिलं मी बिंदासपणे त्यांच्यावर ट्रस्ट करू शकतो त्या ग्रुपवर. तर मला असं वाटतं की पहिले 1-2 लाख किंवा थोडे पैसे जास्ती द्यायला परवडतील जर ते टिकाऊ घर असेल तर. आणि मला असं वाटतं हा ग्रुप होपफुली त्याच वेळी जाईल की सगळ्या मिडल क्लास असू द्या, कुठलाही क्लास असू द्या, त्यांचे स्वप्न पूर्ण होतील आणि त्यांच्या स्वप्नाला इजा झाली तर त्याची जबाबदारी हे घेणार यांनी टॅगलाईन मध्ये लिहिलं. सर आपण एकंदरीत पाहिलं तर मुंबईमध्ये अनेकसे प्रोजेक्ट आहेत. तुम्हाला देखील हा प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये अनेकसे प्रोजेक्ट आहेत ते CRZ असतील या कुठल्या राजकीय कारणामुळे अडकतात आणि त्यामुळे लोकांना अनेक गोष्टीचा सामना करावा लागतो. अशी देखील जर तुमच्यावर जर परिस्थिती झाली तर तुम्ही लोकांना कसं ते पुढे हे कराल, हँडल वगैरे कराल? मला वाटतं हा प्रश्न यांच्यासाठी जैसे कि मैं कहा, मिस्टर आट्रे इज द पर्सन हु जो ये सब जो आपका सवाल था, ही इज द बेस्ट एट दैट. पिछले 18 साल का एक्सपीरियंस है इनकी मास्टरी है इसमें. मेरी मास्टरी है लोगों को बैकअप करना, इनकी मास्टरी है वहाँ बैटिंग करना. So I guess Atri, nice if you answer this question. Do you understand this Marathi? ये मिस्टर मुखर्जी है तो आपको हिंदी में सवाल पूछना पड़ेगा. शिव ठाकरे यांना इधर तुम्ही संपत्तीकडून अपेक्षित ठेवतात का एका फ्लॅटसाठी? नाही दादा, मी इथे पाहुणा म्हणून आलोय आणि मला असं वाटतं संपत्ती त्यांनी एक क्लिअर केलं, एक चांगली गोष्ट आहे की कुठल्याही सेलिब्रिटी किंवा कुठल्याही क्लासला ही वेगवेगळे पेमेंट किंवा वेगवेगळी अमाऊंट नसेल, सर्वांसाठी सेम अमाऊंट आहे. तर मला असं वाटते की मी म्हटलं ना मुंबईपर्यंत त्यांचा प्रोजेक्ट जेव्हा येईल तेव्हा शिव ठाकरे घेईल ना ती, म्हणजे नको थोडं मला असं वाटतं पैसे देऊन दिलेला घरात जास्ती करमेल मला. You got good personality. Will you join Bollywood as an actor? Sorry? Will you join Bollywood as an actor? When I came to India, accidentally I met some guy and he got me to modeling. I did about 45-50 TV commercial ads and I featured in 4-5 movies. This was in 2003-4. Ishwish, Dil Pardesi Ho Gaya, Sound the Love Season with Sound Ji, Atma, 4-5 movies. हाँ तो अभी पहले हीरो बनने का शौक है, अभी हीरो बनाने का शौक है. I did couple of projects with Sandeep ji, Dobioli, Returns. We produced couple of 4 Punjabi movies. We are into investing in OTTs. So अभी वो पर्दे के पीछे रह के बहुत शौक था. Thank you. पब्लिक को घर देने का कब तक का टारगेट है आपका? पब्लिक जब पहला फॉर्म भरेगी आपने टारगेट क्या होगा तो कितने देर में घर दे देंगे? जी सर, मेरे ख्याल से within 15-20 days you'll be having everything online, brochures सारे मार्केट में आउट रहेंगे एंड शुरुआत हो जाएगी within 2 weeks. प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है सर? बताता हूँ. आज शुरुआत हुई, आज नारियल फोड़ा है. कब तक कंप्लीट होगा और कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है लगभग? सर कंप्लीट तो बिल्डिंग तो बना रही है, मतलब कब वो कर रहे हैं कि हम लैंड्स हैं हमारे पास काफ़ी सारे बड़े जो अपकमिंग बिल्डर्स हैं, जो पुराने वाले भी हैं, उनके साथ अपने लिंक्स हैं, टाइप्स हैं एंड 15-20 डेज में आपको सब ये ऑनलाइन दिख जाएगा. इन्वेस्टमेंट साइज टिकट साइज from 45-50 lakhs के आप there is no end. प्रोजेक्ट कॉस्ट सॉरी सर, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे. मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछ रहे हैं आप? जैसे कि 15-20 डेज में वो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. Thank you. सर एक सवाल मुझे सब लेडीज से पूछा था, ऑल द वंडरफुल लेडीज. ऐसा कहता है कि हर एक घर में उसकी लक्ष्मी एक औरत होती है. So I wanted to ask all the 4 wonderful ladies, what is your idea of a dream home? अपने ड्रीम होम में आप क्या रखना चाहिए, क्या संपत्ति रखना चाहिए? All the 4 ladies, one by one. I think my dream home would always be a home which has a lot of love, a lot of care, and a lot of kindness. And जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जब ये सब होता है तो आपका एक होम नहीं बल्कि एक पैलेस बनता है. Thank you.
So a home makes it complete with your loved ones, and yeah, I mean there's positive energy, a beautiful house, beautiful view, of course, but it completes with your loved ones, your family, and that's home. मेरे लिए घर मतलब फैमिली है, एक ऐसा घर जहाँ पे फैमिली के साथ सुकून से प्यार से रह सके. वी हैव अ बिग फैमिली, वी लिव इन जॉइंट फैमिली. तो हर एक जो नाना नानी दादा दादी उस उम्र से लेके 3 साल की मेरी बेटी है वहाँ तक हर उम्र के लोग उस घर को एंजॉय कर सके इक्वली. घर वैसा होना चाहिए, लेकर जहाँ फैमिली सुकून से रह सके. Okay, as everybody said, घर, home, प्यार और फैमिली सब साथ में रहना बहुत ज़रूरी है. बट सिंस हम अभी मॉडर्न लिविंग में रह रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप घर लो, संपत्ति लो, तो डेफिनेटली वो संपत्ति कैसी बनाई हुई है, क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. आज हमारे सभी यंगर जनरेशन ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. तो ऑब्वियसली जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल्स, एमिनिटीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है हमारी ज़िंदगी के लिए. बिकॉज मुंबई जैसे शहर में या पुणे जैसे शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को अपने रहने वाले जगह पे अगर कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ मिल गए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. तो मुझे लगता है जो भी कंस्ट्रक्शन वाले हैं आजकल ये बहुत ध्यान रखते हैं कि अपने जो भी कंस्ट्रक्टेड होम प्रोजेक्ट्स हो वहाँ पर सारे एमिनिटीज़ हो. एंड आई डेफिनेटली बिलीव इन हैविंग अ कंप्लीट होम विद लव and amenities for sure. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. जानना चाहूँगा, जैसे आप सिंगल हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बैचलर्स के लिए क्या फैसिलिटीज है, क्या अवेलेबिलिटी है? बैचलर्स की क्या फैसिलिटी है? फ्लैट्स के लिए क्या अवेलेबिलिटी है? फ्लैट्स के लिए क्या अवेलेबिलिटी है? आप क्या चाहते हो? अंदर क्या है? उसको चाहिए हमारे संपत्ति के साथ आपको लक्ष्मी भी दे देंगे. शादी.com में से कुछ खोल लेते हैं. सब मिलेगा. अरे नहीं, रूम चाहिए. Thank you so much. Let's take one group picture along with our guests. थोड़ा सा और नजदीक सर सामने एकदम संध्या मैम या समोर शिवदा सेंटर. Thank you so much, everybody. With this, we conclude this event. With this, and Mayuri Malandra signing off. Thank you. Hey, Babu. Thank you. Solo with everyone, please. Visual. Hey, bhai. Yeah, visual. Thank you. Sandhya. Shabira, solo picture. Shiv bhai. Sandhya ma'am. Camera. Shiv sir, solo. Shiv sir, solo. Shiv solo picture. कैमरा इधर सोनिया मैम स्ट्रेट या सोनिया मैम just one solo picture. Ishika मैम solo is there. Sonia मैम yeah straight. One. Thank you. Ishika मैम come. आज के धक्का मारो
यार मैं क्या इधर ही कहना चाहोगे यार शुरुआत उससे करते हैं यार मैं हमेशा वहीं पे भी बोला कि कोई इवेंट में आना और वहाँ पे अच्छी बातें बोलना, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं घर के लिए। तो मैंने पहले पूछा कि एग्जैक्ट क्या है, तो वो एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जब घर लेते हो पूरे लाइफ का पैसा उसमें डाल के घर होता है आपका, कहीं भी पुणे हो मुंबई हो। अभी मुझे पूछोगे तो मेरी दीदी और मैंने पूरे जमा करके फिर जाके हम अभी अमरावती में घर ले सके। तो वो घर लेने के बाद वो ट्रस्ट होना चाहिए। तो संपत्ति ग्रुप का एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको घर सिर्फ दे नहीं देती है, उसका मेंटेनेंस जो भी चीज़ें होती है उसकी वो मेंटेन करते हैं, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वो देते हैं। उसके बावजूद मतलब आप घर लेने के बाद भी उनको कॉल करोगे, मुझे लगता है अच्छे इंटेंशन से शुरू किया है और शुभकामनाएं उनके साथ, बड़ा ग्रुप बने और आगे जाए। अब फाइनल बहुत जल्द आने वाला है, डीनू का नाम सबसे ऊपर आ रहा है फाइनल की रेस में जीतने वाले। आप अगर कुछ इस पे कमेंट करना चाहो क्या होगा? यार मैंने पूरे खतरों के खिलाड़ी में बोला कि सबसे ज़्यादा अगर मेहनती और डिजर्विंग बंदा है तो डीनो है। और हर शो में सब लोग अपनी अपनी चीज़ें लेके आते हैं, जीतने के लिए आते हैं, पर एक होता है कि वो डिजर्विंग कौन है। तो जितने स्टंट मैंने देखे, मेरा दोस्त है इसीलिए नहीं, बट एज अ प्लेयर एज अ कंटेस्टेंट वो डिजर्व करता है और मुझे लगता है उसको मिलेगा जो डिजर्व करता है। इल्विश या अभिषेक किसे सपोर्ट कर रहा है? यार दोनों अच्छे हैं यार, दोनों मतलब आप ऐसे मतलब मुझे लगता है बिग बॉस में ऐसी चीज़ें होती है जब लास्ट जो दो लोग रहते हैं कि दोनों में कंफ्यूजन होता है कि किसे वोट करें, वो दोनों हैं। और जिया और मनीषा भी अच्छी है। अच्छा मैं सेफ खेल रहा हूँ, मैंने चारों के नाम लिए। पर एल्विश आर्मी के बारे में जिस तरह पूरा हिला दिया है मौसम, एल्विश आर्मी मैंने कल या परसों स्क्रीनशॉट देखा है कि बाकियों की वोटिंग और एल्विश की वोटिंग का ग्राफ आई शपथ नेक्स्ट लेवल है। तो मुझे लगता है उससे लोग प्यार करते हैं। जो सिस्टम हिला है उस पर क्या कहना चाहोगे? जो सिस्टम हिला है उस पर क्या कहना चाहोगे? सिस्टम हिलाने वाला बंदा है वो, और इसलिए उसके साथ उतने खड़े हैं क्योंकि वो रियल है। और मुझे लगता है रियल जब बंदा होता है तो लोगों से कनेक्ट होता है, इसलिए उसका ग्राफ 50% से भी ज़्यादा है। जो बाकी लोग एक साथ इतने मुझे 50% में दिखे थे और ये 90 में था बंदा, तो वो डिजर्व करता है। तो इसी के ऊपर अर्चना ने एक और कमेंट किया था कि है ना, रियल बिग बॉस के अंदर शिव और MC स्टैन के बीच में भी पॉपुलैरिटी को लेने के बाद डिजर्विंग कोई और था और ट्रॉफी किसी और को मिली है। जो हुआ तो हुआ भाई, आगे खतरों के खिलाड़ी में उसका हफ्ते के पैसे भी मिले मुझे और आगे शो भी मिल रहे हैं, तो अभी मैं खुश हूँ। जो हुआ वो गया, वो पहले पास था मेरा, हो गया। चलो इसको कौन बताया गाड़ी मेरी जूम है, इधर है उधर है, कैसे पता चलता? एक चिप लगा रखा है इस गाड़ी के अंदर। तो वेट कर रहा था आपका, तो मैंने देख लिया। शिव भाई जो सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको मेरा ग्लो दिख रहा है, बस ये प्यार का ही, तुम लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है। गाड़ी में घूम रहा हूँ, रिक्शा में बैठ के वो मीटर नहीं देख रहा हूँ, अच्छी बात। शिव भाई को फोटो चाहिए, फोटो चाहिए इसको भाई को। इधर थोड़ा जगह दो ना भाई। शिव भाई इधर शिव भाई आपके बहुत फैन कौन है? क्या क्या मराठी माणूस इस बार ट्रॉफी घर पे आने वाली है। खतरे खिलाड़ी की, खतरे खिलाड़ी की 27 हफ्ते के पैसे मिलने के बाद यार घर पे आई है तुम लोग को, ज्यादा उड़ूंगा तो ऊपर वाला लाठी देगा ना। ओके सही क्या बात है? नहीं आप बहुत अच्छे हो भाई। डाउन टू अर्थ यार। और इसका थोड़ा वीडियो निकालना। हां इसको निकालता हूं भाई, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। इसको भी ले जाओ भाई राजा को।